Hello class 6, welcome back to our channel. So class 6, today we are going to start our chapter 3 from our history book, in the earliest cities. So in this chapter we'll learn about some evidences that the archaeologists have been found, and with the help of those evidences they declared the particular places as cities. So some evidences were there, like हम अभी जो stories पढ़ने वाले हैं, जिस cities को हम cover करेंगे उसमें बहुत सारे evidences हैं. Evidences like archaeologists को कौन से evidences मिल सकते हैं, like tools, weapons, ornaments and so many things. So let's start with the first story is given, the story of Harappa. बेटा जी एविडेंसेस मिले. एविडेंसेस इनिशियली 150 ईयर्स अगो रेलवे लाइंस लेड की जा रही थी. 150 ईयर्स अगो मीन्स द रूलिंग पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स वी कैन से. अभी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स थे. सो 150 ईयर्स अगो का इंसिडेंट है व्हेन द रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन. पंजाब में हुआ ये. एंड इंजीनियर्स stumbled up the site of Harappa in present day Pakistan. So वहाँ पर उनको कुछ, जब वो they were like searching और वो रेलवे लाइंस को लेट डाउन कर रहे हैं, तो उन्हें ब्रिक्स मिले. एंड ब्रिक्स मिलने के बाद उन्हें कुछ ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि वो एविडेंसेस हैं या नथिंग. दे सीम्ड द ब्रिक्स लाइक अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड. उनको ब्रिक्स मिल गई, हाई क्वालिटी के ब्रिक्स दे हैव बीन फाउंड. सो दे वर हैप्पी एंड कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द wall of the old building to the city of build railway line. So railway lines को बनाने के लिए those engineers, those laborers, those people used the bricks, and they seemed those bricks like ready-made high quality bricks were there, जिनको as it is use कर लिया गया for the railway line. and वो बहुत good quality के bricks थे. baked bricks were there. even कुछ बिल्डिंग्स भी मिली, एंड बिल्डिंग्स वर ऑल्सो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय देम जस्ट बिकॉज कि हमें ब्रिक्स मिल जाएंगी. और अगर वो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय नहीं की जाती तो हो सकता था हमें ज़्यादा एविडेंसेस मिलते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा. और उसके आफ्टर सम टाइम कुछ नहीं है. यहाँ पर 150 ईयर्स में एविडेंसेस मिले, लेकिन नो बडी रियलाइज्ड कि ये क्या है. देन अबाउट 80 ईयर्स अगो के बाद फिर से कुछ एविडेंसेस मिलते हैं. एंड दिस टाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दिस दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट. तो रियलाइज हुआ कि ये ओल्डेस्ट सिटी थी, एंड द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. ऑल अदर सिटीज फ्रॉम सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड, वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन, because this is the first city. first city कौन सी फाउंड की गई? हड़प्पा. एंड लेटर ऑन जो भी सिटीज़ को हमने ढूंढा, और ऑलमोस्ट सेम फीचर्स वर देयर. सो सेम फीचर्स थे, उन सेम फीचर्स के सारे सिटीज़ को कंसिडर्ड एज हड़प्पन. दैट इज़ वाई दिस सिविलाइजेशन, this settlement is also known as Harappan civilization, because first city was Harappa, and then all the cities are considered as Harappan civilization. and बाद में उसको जब बहुत inventions and उसके ऊपर study की गई, then realized that these cities developed about 4700 years ago. तो ये बहुत पुरानी थी, ये realize किया गया. So now let's talk about these cities, कि cities actual में क्या structure था. So most of the cities were divided into two or more parts. So two parts में divided थी. Usually the part of the west part, when we talk about the west, here you can see, so this one is east part and this one is west part. So west part was smaller, कम size में कम था, size में कम, एरिया कम, बट इट हाइट में वो ज़्यादा था. दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट. एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब देम एज अ सिटाडेल. तो ये वेस्टर्न पार्ट विच वॉज स्मॉलर इन साइज बट हाइट में ज़्यादा था, बट हायर. सो इट डिस्क्राइब्ड एज सिटाडेल. फाइन.
Now the east part is area wise ये big area था, but this is not in lower as compared to Citadel. Height में कम था. So this area is considered as lower town. So the city is divided into two parts, west and east. West side was small in size and higher, described as Citadel. And when we talk about the eastern side was larger but lower, and this is called the lower town. So in this way the city was divided into two parts. And mostly important buildings कौन से पार्ट में हुआ करती थी बच्चा? वेस्टर्न पार्ट में, बिकॉज यही हाइट वाला पार्ट है. और जो आपका लोअर पार्ट विजिबल है यहाँ पर जनरल कॉमन पीपल रिजाइड किया करते होंगे. यस, तो इस तरह से डिवाइड किया गया. सो यू कैन सी हियर द वेल प्लान्ड सिटी, यहाँ पर एकदम इक्वली डिवाइडेड हैं चीज़ें. एंड द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड एंड दे हैव लास्टेड फॉर 1000 of years. ब्रिक जो अभी भी ब्रिक्ड मिली थी जब रेलवे लाइंस ले डाउन की जा रही, तब भी ब्रिक्स की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी. एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया था दैट दिस cities were developed around 4700 years ago. Now you can imagine कि 1000 of years से भी पुरानी bricks हैं, and bricks, all the bricks are in very good condition. So the bricks, even the walls of these houses or the buildings were laid in an interlocking pattern. तो walls को strong बनाने के लिए पहले brick लगाई जाती थी. One brick is like this, vertical and then horizontal. One is vertical and then horizontal. So इस तरीके से pattern जो होता है, this pattern is called interlocking pattern, and इससे जो walls होती हैं strong हो जाती थी. So this was the very important and features we can say कि इन सब बातों से we can realize that the cities were very developed and well maintained. And when we talk about the cities है कहाँ पर सारी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बेटा बहुत सारी साइट्स हैं. Here when we talk about पाकिस्तान में भी बहुत सारे साइट्स हैं, जिसमें पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया. तो इंडिया के पंजाब में भी हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं, हड़प्पन साइट्स मिलते हैं. इवन इन पाकिस्तान पंजाब वी ऑल्सो फाउंड सम हड़प्पन साइट्स ऑल्सो. सो बहुत बड़े एरिया में साइट्स हमें बेसिकली मिल जाती हैं. यू कैन सी इन दिस मैप, सो आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा. हियर यू कैन सी द cities. These are the cities of हड़प्पन civilization. You can see the आपको सारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिल रहा है, जिसमें गुजरात इंक्लूड है, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड द पाकिस्तान पार्ट ऑल्सो. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ नॉट अ स्मॉल सिविलाइजेशन, ये बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड था. आज प्रेजेंट इंडिया में हमें बहुत सारे साइट्स हमारे इंडिया में भी हम लोगों को मिल जाते हैं, लाइक हरियाणा है, पंजाब, गुजरात. लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो स्टिल सम लाइक मोहनजोदारो वेरी इंपॉर्टेंट साइट, हड़प्पा वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, ये साइट्स पाकिस्तान में हैं. एंड ना अभी की अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो यस, कुछ आपको दिख जाएंगे कि अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे गूगल पे तो यू कैन सी म्यूजियम्स वर देयर. म्यूजियम्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को या बेसिकली इन सब चीज़ों को अभी तक प्रिजर्व करके रखे हुए हैं. ये सो बहुत बड़े एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड एंड मैनी यूनिक ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लाइक रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, स्टोन वेट्स, यू कैन सी वेट्स मिलेंगे, सील्स, स्पेशल बीड्स एंड द टूल्स, एंड टूल्स मेड अप ऑफ कॉपर. नाउ नियोलिथिक एज तक we learned that the stone tools were used, but here copper tools मिले हैं, even the stone blades also. So these were the objects that archaeologists have found, and all these things basically preserved in the museums right now. Okay,
सो सम सिटीज़ वर वेरी स्पेशल बिल्डिंग्स. सो मैंने आपको बताया द सिटीज़ वर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड सिटाडेल में मोस्टली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते थे. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट मोहनजोदारो मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान में है प्रेजेंटली, उसमें एक स्पेशल टैंक है, अ वेरी स्पेशल ह्यूज स्पेशल टैंक. आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म ग्रेट बाथ फॉर द स्पेशल टैंक. तो हमें मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिलता है एंड द ग्रेट बाथ वॉज अगेन बिल्ट अप वेरी इनोवेटिव वे. प्लास्टर्स यूज़ किया गया, ब्रिक्स बहुत प्रॉपरली मेंटेन की गई, इवन द वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार यूज़ किया गया ताकि पानी कहीं लीकेज ना हो. एंड द स्टेप्स वर फॉर्म्ड, स्टेप्स बनाए गए ताकि अंदर लोग जाके दे कैन टेक अ बाथ. और वो ओकेजनली ओपन होता था, ओकेजनली लोग इस तरह के बाथ्स को यूज़ करते थे. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर लाइक दिस एरिया इज फिल्ड विद वाटर एंड द वाटर बेसिकली वेल से लाके यूज़ किया जाता था एंड देन आफ्टर द यूजिंग ऑफ द वाटर इसको हम फिर से ड्रेन आउट कर देते थे. एंड आसपास सारे रूम्स बने होते थे. जस्ट इमेजिन कि ये हो सकता है किसी ओकेजन पे ओकेजनली यूज़ किया जाता हो. येस, सो अदर सिटीज़ और भी बहुत सारी सिटीज़ वी विल लर्न लाइक कालीबंगन एंड लोथल, जहाँ पर कालीबंगन एंड लोथल are the two sites where we found the fire altars basically for sacrifices. ठीक है. एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पर हमको स्टोर हाउसेज भी मिलते हैं. तो मैनी एविडेंसेस जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे एंड जस्ट रियलाइज दैट येस ऑल दीज प्लेसेस आर द पार्ट ऑफ अर्लीस्ट cities. So next topic we will cover in the next class. Thank you so much.